Mineral and Energy Resources Part 3 Non-conventional energy sources गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत Sustainable energy resources are only the renewable energy sources like solar energy, wind energy, geothermal energy, tidal energy, and biomass. These energy sources are more equitable, distributed, and environment friendly. The non-conventional energy sources will provide more sustained, eco-friendly, cheaper energy after the initial cost is taken care of. सतत पोषणी ऊर्जा के स्रोत केवल नवीकरणीय योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय तथा बायोमास। ये ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल हैं। परंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। Nuclear energy resource. It has emerged as a viable source in recent time. Although it is non-conventional source, but it is exhaustible energy because it is based on minerals like uranium and thorium. Atomic Energy Commission was established in 1948. There are 7 nuclear power plants in India. These are at Tarapur in Maharashtra, Rawatbhata in Rajasthan, Narora in UP, Kalpakkam in Tamil Nadu, Kega in Karnataka, Kakarpada in Gujarat, and Kudankulam, Tamil Nadu. परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा। कुछ वर्षों से नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरी है। यद्यपि यह अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंतु यूरेनियम तथा थोरियम जैसे खनिजों पर आधारित होने के कारण यह समाप्य ऊर्जा संसाधन है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो इस प्रकार हैं: तारापुर महाराष्ट्र, रावतबाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरपाड़ा गुजरात तथा कूडनकुलम, जो अभी हाल ही में स्थापित किया गया नया परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो तमिलनाडु में है। सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी sun's rays tapped in photovoltaic cells can be converted into energy known as solar energy. The two effective processes considered to be very effective to tap solar energy are photovoltaics and solar thermal technology. Solar thermal technology has become relative advantages over all the non-renewable energy sources. It is cost competitive, environment friendly, and easy to construct. Solar energy is 7% more effective than coal or oil-based plant
and 10% more effective than nuclear plants. It is generally used more in appliances like heaters, crop dryers, cookers, etc. The western part of India has greater potential for development of solar energy like Gujarat and Rajasthan. सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेलें विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसमें दो प्रक्रमणों को इस्तेमाल किया जाता है, फोटोवोल्टिक तथा सौर तापी प्रौद्योगिकी। सौर तापी प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक तथा नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्कों तथा कुकर्स जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों, जिनमें गुजरात, राजस्थान प्रमुख हैं, सौर ऊर्जा विकास की अधिक संभावनाएं हैं। विंड एनर्जी, इट इज पॉल्यूशन फ्री, inexhaustible sources, simple machinery is required. Wind rotate turbines to produce electricity. Permanent wind system like trade and westerly winds, seasonal winds like monsoon winds, and local winds like land and sea breezes can be used to produce electricity. Country's potential of wind power generation exceeds 50,000 megawatt, of which 1/4 can be easily harnessed. In Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Karnataka have favorable conditions for wind energy. पवन ऊर्जा, यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह नवीकरणीय स्रोत है। साधारण मशीनों प्रयोग की जाती हैं। हवा से टरबाइन चलाई जाती हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। व्यापारिक तथा पछुआ जैसी स्थायी पवन प्रणालियाँ तथा मानसून पवन जैसी मौसमी वायु प्रणाली तथा स्थल एवं जल समीर जैसी स्थानीय पवन ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में 50,000 मेगावाट की पवन क्षमता है, जिसमें से 1/4 ऊर्जा को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। भारत में 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चालित टरबाइन स्थापित की जानी हैं, जो 12 अनुकूल स्थानों, विशेष रूप से सागर तटीय क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। Tidal energy. Tidal energy is generated by tides and oceanic currents. Large tidal waves are known to occur along the west coast of India. Hence, India has great potential for development of tidal energy along the coast, but so far these have not yet been utilized. ज्वारी और तरंग ऊर्जा, महासागरीय धाराएं तथा ज्वार भाटा ऊर्जा का अमित भंडार गृह हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती हैं, अतः इन क्षेत्रों में ज्वारी ऊर्जा विकसित करने की
व्यापक संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। जियोथर्मल एनर्जी। हॉट वाटर इज यूज्ड to rotate turbines. Groundwater is heated and just out and can be used for generating electricity. Hot springs and geysers are used to generate electricity. Manikaran in Himachal Pradesh is example of geothermal energy. भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा तथा गीजर कूपन से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया जा चुका है। बायो एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल animal waste, urban waste. It can be converted into electrical energy. It can be mostly developed in rural areas, clean the environment, cheap and easily available in rural areas. One such project of converting municipal waste into energy is in Okhla in Delhi has established. जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका के अपशिष्ट, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल हैं। ज्वारीय पदार्थ से विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित की जा सकती है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा और पर्यावरण प्रदूषण घटेगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, रीयूज ऑफ एनर्जी एंड वाटर, यूज अल्टरनेटिव सोर्सेज, यूज स्क्रैप मेटल्स, export of strategic minerals must be reduced. खनिजों का संरक्षण। सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। अतः सतत पोषणीय विकास के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अधिक उपयोग करना चाहिए। धातु खनिजों के छाजन स्क्रैप का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। सामरिक एवं अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों को लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके।